Assalamu alaikum students. I am Aisha Kausar, teacher at Federal Science College. Let's start our new lecture today. Exercise 3.1. I have given concepts in the previous lecture about exercise 3.1. Those were third proportional, fourth proportional, mean proportional and continued proportion. Now we have to start the questions. What is question number 1? Find third proportional between 6 and 12. Find the third proportional of 6 and 12. What we have to do, we don't know the third proportional, so we have to let it. We are letting x be the third proportional. You can let any alphabet, M, X, L, anything which you want. So the proportion will be like this. How can we write the proportion? 6, 12, and what will be the third number is x, which we don't know. And I have told you in the third proportional we have to write a proportion like this, that the middle value will be repeated to make the proportion. As we know that A ratio B proportion C ratio D. We need 4 elements to complete proportion statement, and we are having 2 numbers, and third number we have to find, and second number we have to repeat, then the proportion statement will be completed. And we know that to solve the proportion we have a formula: product of extremes is equals to product of means. So product of extremes 6 and x will be multiplied, and 12 multiplied with 12 is 144. 6 multiply x is 6x. So x will be 144 over 6. 144 divided by 6, we got 24. So the third proportional of 6 and 12 is 24. Now come to the next question. Same statement is there. What we have to do? We have to find third proportional of x minus y whole square and x cube minus y cube. We are letting that A be the third proportional. Then, as I have told you, you can let any alphabet. And why we are letting A here? Because x and y are in the question, so we have to let a different variable. So 2 numbers are given and we have to find third proportional. So we are letting third proportional as A. How we have to make the proportion? First number is on the same position, second number will be repeated, and third number is which we have to find. Proportion statement is complete now, and after proportion making it complete, how can we solve it? By product of extremes is equal to product of means. Extreme means corner values and means mean middle values. Corner values x minus y square multiply with A, we got this, and middle values are getting multiply, x cube minus y cube and x cube minus y cube having square, because there are 2 factors, so their powers or exponents will be added and we will get square here. What we have to find? We have to find the value of A. So x minus y whole square is multiplying here, it will come and divide with this. And we know that x cube minus y cube formula is open as a cube minus b cube is equals to a minus b, a square plus ab plus b square. So this formula is open: x minus y, a cube minus b cube, a minus b, and then according to the formula a square plus ab plus b square, and this square is coming from this square. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फार्मूला ओपन हुआ है और स्क्वायर अपनी जगह पर ही मौजूद है. देन एक्स माइनस वाई, ये जो स्क्वायर है इस फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा, एंड दिस स्क्वायर विल अप्लाई ऑन द नेक्स्ट फैक्टर ऑल्सो. देन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, एंड व्हाट इज़ द रिमेनिंग? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज़ आवर आंसर. Now students, come to the next question. What we have to find? We have to find a fourth proportional, and we are given 3 values: first, second and third.
3 values are given and we have to find the fourth proportion, and to make a proportion statement we need 4 elements. 3 are given and we have to find the fourth, that is we are letting A. Let fourth proportional is A. Why we are letting A here? Because the expressions are given in XY form. After making proportion we need to solve it. Product of extremes is equals to product of means. By multiplying extremes, A multiply x square minus 11x plus 24 is equal to product of means, middle values, x minus 3, 5x 4 minus 40x cube. After multiplying this, what we have got? Factors are multiplying in form, and then x square minus 11x plus 24 is getting divided. After division, we have taken this 5x cube common from this factor and we got x minus 8, and we have make the middle term break here, x square minus 11x plus 24. इसकी मिडल टर्म ब्रेक की है कैसे? 3 8 24. वी नीड 2 नंबर्स. ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीपल 24 हो और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आए. दोज नंबर्स आर 3 and 8. ओके, -3 and -8 विल गिव अस -11. ऐड करने से -11 आएगा और मल्टीप्लाई करने से +24 आएगा. और फिर यहाँ पर x कॉमन लेने से x माइनस 3 एंड -8 कॉमन लेने से x माइनस 3. सेम फैक्टर्स मिल गए और हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म में मिडल टर्म ब्रेक करके क्या आया? x माइनस 3 x माइनस 8. x माइनस 8 एंड x माइनस 8 और x माइनस 3 एंड x माइनस 3 आर कैंसिल आउट, एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग? 5x क्यूब. दैट इज़ the fourth proportional between this. What is the next question? 3 numbers are given and we are letting x be the fourth proportional. Then तीनों numbers आपने उसी sequence से लिखे proportion statement में, and the fourth proportion is x as we have shown mentioned in the let. यहाँ suppose जो हमने किया है, product of extremes is equals to product of means. extremes को multiply करें, x multiply 15 a5 b6 is equals to 10 a square b5 multiply 21 a cube b cube. 21 and 10 मल्टीप्लाई करके 210. a square और a cube मल्टीप्लाई होकर बेसिस आर सेम, देन पावर्स विल बी एडेड. a5 विल बी देयर, देन b5 एंड b3 विल बी b8. और यहाँ पर 15 a5 b6 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. आफ्टर कैंसिलेशन a5 और a5 कैंसिल हो गए. b की पावर ऊपर 8 है और नीचे 6 है, तो ये क्या हो जाएगी? 8 माइनस 6. और 15 को 210 को 15 से डिवाइड करें, वी गॉट 14. सो 14 b स्क्वायर इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दीज 3 टर्म्स. ओके गर्ल्स, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल. वी आर गिवन 2 वैल्यूज़ हियर और इसका आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है. और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? जो मिडल वैल्यू होती है, मिडल जो 2 वैल्यूज़ हैं वही मीन प्रोपोर्शनल होता है. लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल. दोनों नंबर्स के दरमियान जो वैल्यू होगी दैट विल बी मीन प्रोपोर्शनल. हमने लेट कर लिया m इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान m पुट कर दिया. मीन पोजीशंस पर हमने m पुट किया है. आफ्टर मेकिंग प्रोपोर्शन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. m multiply m is equals to 15 p4 q r cube, 135 q5 r7. 15 multiply 135 2025 आ गया. p4 q की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है. 5 और 1 6 हो गए. r की पावर 3 है, r की पावर 7 है. वी गॉट r10. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. क्यों स्क्वायर रूट ले रहे हैं? क्योंकि m स्क्वायर आ गया है. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. मीन स्क्वायर जो हमने मीन प्रोपोर्शनल जो फाइंड आउट करना था, तो उसका स्क्वायर है. स्क्वायर आपको हटाना है. स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, m स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2025 का आ गया स्क्वायर रूट 45. p4 स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2. फिर इसी तरह q के ऊपर 6 पावर है, वो भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, और 10 की पावर भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है. तो ये हर पावर के ऊपर अप्लाई हो गया. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. p के ऊपर स्क्वायर, q के ऊपर 3 एंड r के ऊपर 5. और जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं वी गॉट प्लस माइनस साइन. होप इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस कर.
अगेन आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हैं और आपने फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शनल. वी आर लेटिंग दैट m बी द मीन प्रोपोर्शनल. देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्सट्रीम पोजीशंस पर, और m जो आपने लिया है मीन पोजीशन पे उसको आपने रिपीट करके लिखना है और प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट हो गया. फर्स्ट रेशो, प्रोपोर्शन एंड सेकंड रेशो. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई. यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा ओपन हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल. क्या बच गया हमारे पास? x माइनस वाई और x माइनस वाई. बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड. यहाँ पे भी पावर 1 और 1 कितने हो गए? x माइनस वाई का होल स्क्वायर. दोनों साइड पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. m स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. और प्लस माइनस साइन कहाँ से आया? जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटता है वी गॉट प्लस माइनस साइन. नाउ गर्ल्स, fourth and last question of this exercise, find the values of letter involved in the following continued proportion. continued proportion में क्या होता है? 3 values are given और उसके अंदर वो उसका proportion बनाया जाता है जिसमें second value repeat हो रही होती है. तो आप कहते हैं कि ये इसलिए ये तीनों numbers are in continued proportion. We are given 3 numbers 5, p and 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. देन प्रोपोर्शन आपने इसका स्टेटमेंट कैसे बनाया? 5 रेशो p, देन प्रोपोर्शन p रेशो 45. मिडल वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कुछ भी हमने इसमें लेट नहीं करना. जो तीनों वैल्यूज़ गिवन हैं उसी का प्रोपोर्शन स्टेटमेंट बनाना है बाय मेकिंग द मिडल वैल्यू एट द रिपीटेड पोजीशन, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. p मल्टीप्लाई p प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड 5 मल्टीप्लाई 45 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल एंड 225 का स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 15. सेम लाइक अदर क्वेश्चन पे आ जाएं. 7 m माइनस 3 एंड 28 3 वैल्यूज़ आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड m सिंस दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हम कैसे उसको लिखते हैं? प्रोपोर्शन स्टेटमेंट में मिडल वैल्यू को रिपीट करके लिखते हैं. 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एक्सट्रीम्स 7 और 28 मल्टीप्लाई होके 196 एंड m माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर कैसे आया? बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड. और जब भी स्क्वायर आप हटाते हैं आपको क्या लेना होता है? स्क्वायर रूट. वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. 196 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 14 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? m माइनस 3. अभी भी स्टूडेंट्स m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई जब तक ये -3 इस साइड पे नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है. तो इसे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ. m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14, माइनस 3 विल कम एंड इट विल बी प्लस 3, m इज़ 17. सेम लाइक हेयर, m माइनस 3 यहाँ पर आएगा, प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 3 विल बी गेट -11. और गर्ल्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं. ओके.